Hello and welcome back, everyone. So today we are going to proceed with another lecture on the EKG lecture series. And today's topic is hypertrophy and enlargement of the heart. So before proceeding, hypertrophy and enlargement are basically the helpful mechanism through which the heart copes up towards the stressful conditions. But sometimes, or many a times, this hypertrophy and enlargement are due to some underlying pathology. So their depiction on the EKG paper is very important, and it is to be learned. And secondly, the hypertrophied muscles gets their pumping, the heart muscles in a prolonged due to prolonged straining, the pumping quality of the heart is very much affected, and due to the pumping quality being affected, there is a reduced blood supply towards all over the body. The reduced blood supply might land up the patient into the heart failure. Thirdly, and most importantly, the prolonged hypertrophied muscles need more blood supply because the muscle mass has overall increased, but there is fixed set of capillaries supplying those muscles. So with reduced demand and supply, increased demand and supply gap, the person with prolonged hypertrophy is more predisposed towards the ischemic heart attacks, or he's more susceptible to the ischemic heart attack or any ischemic condition involving the heart. So now let's proceed with the lecture. So before starting, this is very important. Like as we already know, okay, we already know that this is a depiction of the six limb leads. ये six limb leads की depiction है heart के respect में कि heart के this is the our left side, left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. And in the previous lecture we have already discussed their importance कि कौन सी limb lead कौन से aspect को cover करती है. And यहाँ पे हम ये बस देख रहे हैं कि अगर उनका orientation है, अगर this सब कुछ फ्रंटल प्लेन पे अगर हो रहा है, तो अगर उसको एक सर्कल में डिपिक्ट करेंगे, तो फिर उसका जो ओरिएंटेशन होगा, हर कोई अपने-अपने एंगल पे डिपिक्ट कर रहा होगा, और दिस एंगल विल मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लेटर मतलब इन लेटर फ्लो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज इट राइट नाउ. सो the AVL is oriented at -30 degree, and lead 1 at 0 degree, lead 2 at +60 degree, lead AVF at +90 degree, lead 3 at +120 degree, and lead AVR at -150 degree. So it is very important to know it. Like ये जो चीज़ है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे कुछ भी कोई भी सिनेरियो हो, ये रहेगा इम्पोर्टेंट. तो हम जब ये देखना चाहते हैं आज की हाइपरट्रॉफी होगी तो एक्सिस कैसे शिफ्ट होगा. अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो ये मसल मास जो है हार्ट का अगर बढ़ जाएगा, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो बनेगा वो कैसे अफेक्ट होगा यहाँ पे. और फिर अब इसमें ये देखेंगे कि इतना जो प्लेन है हमारा, ये मतलब पूरे अगर हम इस रीजन को देखें तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है. तो दिस इज़ आवर नॉर्मल, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपिक्ट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिपिक्ट करता है. तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है उसका जो वेक्टर बनना चाहिए वो इसी प्लेन में बनना चाहिए, इस प्लेन से बाहर नहीं बनना चाहिए. तो अब इसको और अच्छे से पूरे लेक्चर में यही डिपिक्ट करा जाएगा कि वाई ये नॉर्मल है, वाई अगर इसके अलावा इधर इधर या इधर कहीं बनता है तो क्या रहेगी सिचुएशन. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. सो two distinct cardiac responses to the stress. Stress हुआ है हार्ट पे, पर हार्ट हैज टू वे, either to get hypertrophied, either to get enlarged. Basically हम जब देखते हैं तो term hypertrophy is very much used for the ventricles, and the enlargement term is used for atria. तो EKG can't clearly distinguish between the enlargement and hypertrophy, क्योंकि अब जो है कि दोनों में साइज तो बड़ा ही है ना, वेक्टर शिफ्ट हुआ है. अब वो तो वेक्टर शिफ्ट ही दिखाएगा कि वेक्टर शिफ्ट कैसे हुआ है. इट इज अप टू यू to clinically collaborate, and then एक्सेट्रा एक्सेट्रा की कोरिलेट करना पड़ेगा क्लिनिकली. एंड देन ये सब देखना पड़ेगा इसमें कि हमें कैसे वो डिपिक्ट करना है कि ये इलाजमेंट है या हाइपरट्रोफी है. पर लेकिन हाँ, जो पैथोलॉजी होगी वो तो सीधे पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज आइदर हाइपरट्रोफीड आइदर इनलार्ज्ड. सो जब हाइपरट्रोफी देखते हैं, दिस इज पर्टिकुलर हाइपरट्रोफी. अब हाइपरट्रोफी में क्या हो गया, जो चैम्बर साइज है ना हार्ट का, दैट इज रिड्यूस्ड. एंड इन enlargement, the chamber size is increased. एंड अब रिस्पॉन्स देखते हैं क्यों हुआ. तो जो वो है हाइपरट्रोफी है, हाइपरट्रोफी इज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ओवरलोड. एंड प्रेशर हाइपरट्रोफी किन किन केसेस में हो सकती है, प्रेशर ओवरलोड कहाँ कहाँ होगा. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन
हाइपरटेंशन, प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन है, पेशेंट इज नॉट टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स या जो भी मतलब कि रेगुलेट नहीं कर रहा है, बीएमआई वगैरह जो भी है, तो उसकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेन आ रहा है, तो उसके एज अ रिजल्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी वहाँ पे। फिर एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर सेम सिचुएशन है वहाँ पे कि स्टेनोस्ट है एरिया, मतलब कि जो ल्यूमन है वहाँ का जो पाइप है 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया रहता है एओर्टा का। तो फिर अगर हम वो देखेंगे वहाँ पे जो एरिया है वो मतलब आगे की तरफ जाना चाहिए ना खून, अगर वो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी प्रेशर ओवरलोड ही आएगा, क्योंकि एक सडन प्रेशर से चीजें आगे जा रही हैं, वो प्रेशर का स्ट्रेन जा रहा है वहाँ पे, तो फिर पूरा अगर वो बदल रहा है तो वहाँ पे उतना उसका आएगा। तो जो रिजल्ट होगा थिक पावरफुल वॉल्स होगी वहाँ पे। अगर हाइपरट्रॉफी देखते तो जिम में अगर हम वो करते पेक्टोरलिस मसल्स जो हमारी होती हैं उनके ऊपर हम स्ट्रेन ये डालते हैं तब भी वो मतलब मसल्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर प्रेशर ओवरलोड होगा तो वो दे विल इंक्रीज इन साइज। ओके, सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अब जो डिपिक्शन होता है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से होता है वेंट्रिकल्स का, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो वेट लिफ्टिंग में ये होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह, अब ये देखेंगे इसमें। देन कमिंग टू इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट इज बेसिकली डायलिटेशन। अब वहाँ पे जो रीजन है वॉल्यूम ओवरलोड है, एकदम से ज्यादा चीज आ गई है, तो जैसे कि बलून के अंदर बहुत सारा पानी या कुछ डाल दिया तो वो एकदम से वो हो गया है। वहाँ पे पंपिंग इतनी इफेक्टेड नहीं है, पर लेकिन वहाँ पे क्या है कि एकदम पूरा जो पहली फिलिंग है उसमें ही ज़्यादा अमाउंट आ गया है, तो उस एज अ रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ें बढ़ गई हैं वहाँ पे। तो रीजन कुड बी वॉल्वुलर इनसफिशिएंसी बेसिकली, aortic insufficiency leads to left ventricular enlargement and mitral insufficiency leads to left atrial enlargement। अब ये क्यों है, अब इसके तो वॉल्वुलर प्लेसमेंट से ही वो है। एओर्टा कहाँ पे है, वेंट्रिकल के नीचे है, और mitral valve कहाँ पे, एट्री के नीचे है। तो this is the reason. So results in dilation of chambers to accommodate increased blood volumes. So यहाँ पे जब हम enlargement टर्म जब भी यूज करा जाएगा तो वो एट्रिया के लिए यूज करा जाएगा। ओके, thirdly the three electrical consequences of overload। so अब जो ओवरलोड है यानी कि हाइपरट्रॉफी है या enlargement है, उसमें तीन चीजें बेसिकली होंगी। तो सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन ही तो इफेक्ट हो रही है वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, सबसे पहला जो है कि जो ड्यूरेशन होगी वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी उस चीज की। जैसे कि अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना था, अब मसल्स का जो बंच है वो बढ़ गया है, तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कॉन्ट्रैक्ट होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा रिलैक्स होने में। तो यहाँ पे देखो क्यूआरएस की नॉर्मल जो भी ड्यूरेशन थी अब उससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। और फिर सेकंड है, अब जब मसल बढ़ गया है तो वेक्टर ज़्यादा जनरेट होगा, वेक्टर ज़्यादा जनरेट होगा तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा करंट पोटेंशियल आ रहा होगा, तो एम्पलीट्यूड यूजुअली वन मतलब कि वन बिग स्क्वायर जितना रहता है, और वन बिग स्क्वायर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन शिफ्ट ऑफ द करंट, जो शिफ्ट है ये करंट की शिफ्ट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यही जो है ये एक्सिस डिटरमाइन करेगी कि अब जो है अगर बेसिकली देखा जाए लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गई है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के अंदर जो मसल मास है वो सारा का सारा लेफ्टवर्ड आ गया है। लेफ्टवर्ड ही रहता है ज्यादा पर, लेकिन और एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट डेविएशन आ जाएगी, तो हमारे ये वाला प्लेन अपर वाला प्लेन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही सारा का सारा वेक्टर जनरेट हो रहा होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे 60 डिग्री पे आना चाहिए था वेक्टर पर, लेकिन यहाँ से ऊपर ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब राइट साइड में हम देखेंगे तो राइट साइड में इस तरफ कहीं चला जाएगा वेक्टर पूरा का पूरा, तो फिर हार्ट की जो हाइपरट्रोफी है वो उसमें होगी। ओके, सो द नंबर वन मतलब कि नंबर वन जो कैरेक्टरिस्टिक है ना इसमें, बी इट एम्पलीट्यूड, बी इट ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड द एक्सेस शिफ्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एम्पलीट्यूड, द चेंज इन एम्पलीट्यूड इज द नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एंड यस देयर इज वन एक्सेप्शन कि पीपल विद पेक्टस एक्सकवेटम, मतलब जिनका चेस्ट जब लीड पे लगेगी तो उन उस कंडीशन में पेक्टस एक्सकवेटम कंडीशन में द लीड विल बी वेरी क्लोज टू हार्ट, तो जब प्रॉक्सिमिटी कम हो जाएगी तो जो सिग्नल का ट्रांसफर है वो ज्यादा होगा, तो उसमें उस दैट कांट बी कॉल्ड हाइपरट्रोफी because there is anatomical anomaly there। so the mean electric axis summing the vectors। so अब ये देखेंगे कि इस फिगर में बेसिकली इस फिगर से देखते हैं 1 to 8 में सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स आर बेसिकली कि सिग्नल कैसे आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा
ऐसे नोड से सिग्नल आया, जब सिग्नल आएगा तो सबटल डिपोलराइजेशन होती है, वो हमारी थोड़ी सी राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन होती है, मतलब ओरिजिन जो है वो राइट साइड में हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ें लेफ्ट वर्ड जा रही हैं। लेफ्ट वर्ड जाते जाते अब ये जो देखेंगे हमारा जो लास्ट मतलब कि सारा का सारा जो करंट शिफ्ट है वो राइट से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ चला जाता है दैट साइड। अब ये हम देखेंगे कि अब यहाँ पे 8 वेक्टर बनाए हैं, पर यहाँ पे 80,000 8 लाख कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि माइन्यूट सिग्नल्स है। अब ये हमने पहले ही देखा है कि कार्डियक टिश्यूज कितने स्पेशलाइज होते हैं, हर टिश्यू के पास एबिलिटी है, पेसमेकर सेल्स के पास एबिलिटी है पोटेंशियल जनरेट करने की, और वेंट्रिकल फाइब्रिलेशंस में आगे चल के होता भी है ये। पर लेकिन जो पीक है जो आना चाहिए वो ऐसे नोड से आना चाहिए। पर लेकिन अब वेक्टर बनाने के लिए हम कितने भी बना सकते हैं, पर लेकिन अब इन सबका मीन वेक्टर लेंगे। मीन वेक्टर इज लाइक कॉमन वेक्टर कि जो पूरी की पूरी सिचुएशन बता देगा। तो सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल वेक्टर्स लेंगे राइट टू लेफ्ट, तो जो स्विंग होता है वो राइट टू लेफ्ट वर्ड होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। ओके, सो first instantaneous vector is subtle depolarization. Okay, that's right. So the sum, this is the sum, this is single vector summarizing all instantaneous vector. Direction of this vector is the axis of ventricular depolarization. Okay, तो ventricular depolarization इस डायरेक्शन में ही होगी, नीचे की तरफ जाएगा सिग्नल, तो ठीक है, लेफ्ट वर्ड प्लस इन्फेरली जाएगा सिग्नल। सो द क्वाड्रेंट मेथड, अब क्वाड्रेंट अब देखेंगे, अब क्वाड्रेंट जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कि अब 4 क्वाड्रेंट में हार्ड मतलब कि पूरी सिचुएशन को डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल क्वाड्रेंट रहेगा 0 to 90 डिग्री, ऊपर -90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। तो अब ये देखते हैं कि क्यू आर एस जो एक्सिस है वो शेडेड लाइन में ही क्यों होना चाहिए। अब शेडेड लाइन में क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एवरीवेयर, तो जो सिग्नल आएगा वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ पूरा का पूरा, मतलब कि जो पहले ऊपर से ऐसे नोड से सिग्नल निकला, फिर सबटल डिपोलराइजेशन हुआ, सबटल डिपोलराइजेशन के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही पूरा का पूरा मेन सिग्नल आ गया। तो नॉर्मल थिंग इज लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला जो शेडेड पोर्शन है जो क्यू आर एस एक्सिस है, क्यू आर एस एक्सिस क्यों देख रहे हैं, क्यू आर एस एक्सिस लिए देख रहे हैं क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्यू आर एस एक्सिस डिटरमाइन करता है। तो क्यू आर एस एक्सिस जब हम देखेंगे तो उसका जो पोजीशन होगा वो इस शेडेड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, दैट इज नॉर्मल। अब देखने के लिए तो किसी भी, अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, फ्रॉम फ्रॉम हियर द थिंग्स आर स्टार्टिंग। सो अब यहाँ पे देखेंगे तो जो लीड वन है, लीड वन 0 डिग्री पे प्लेस्ड है, तो फिर इसका और लीड ए बी एफ है और वो 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। ये अब देखा अगर सबसे पहले वाले डायग्राम पे वापस जाओ, इसमें यहाँ पे ये रहा, तो लीड वन और लीड ए वी एफ ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा है लीड वन एंड लीड ए वी एफ, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अब लेफ्ट वेंट्रिकल का पूरा हाल देखने के लिए कौन सी वो है परमानेंट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा किसने कवर कर रखा है, फर्स्ट और एवीएफ ने कवर कर रखा है। तो अभी ये देखेंगे कि कोई भी सिग्नल अगर आ रहा है तो फर्स्ट और एवीएफ में पॉजिटिव होना चाहिए अगर वो नॉर्मल सिग्नल है। क्यों, क्योंकि सारा जो नॉर्मल सिचुएशन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होना चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे जो भी सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्शन में वो पॉजिटिव होता है। ये हमने पिछले पीछे ही वो कर लिया, रिपोलराइजेशन में चीजें उल्टी हो जाती हैं, उसमें आता हुआ सिग्नल नेगेटिव लगता है, ज्यादा सिग्नल पॉजिटिव लगता है। पर कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन की बात हो रही है, तो आता हुआ सिग्नल लगेगा पॉजिटिव है। अपने आप को यहाँ पे सीट पे इमेजिन करके देखना है कि फर्स्ट है और ऊपर की तरफ से सिग्नल आ रहा है, मैं फर्स्ट की तरफ बैठा हूँ तो मेरे को तो आता हुआ दिख रहा है ना अपनी तरफ, तो ठीक है। पर आर को कैसे दिखेगा, ए वी आर अगर लीड पे देखेंगे तो वहाँ पे कैसे दिखेगा, जाता हुआ सिग्नल दिखेगा, तो वहाँ पे नेगेटिव रहेगा डीपोलराइजेशन में, स्पेशली डीपोलराइजेशन में, नॉट इन ट्रिपोलराइजेशन। ओके, सो तो वेरी फर्स्ट स्टेप टू डू इज, मतलब कि कभी भी एक्सेस अगर डिटरमाइन कर रहे हो तो वहाँ पे जो देखना है वो ये देखना है कि पहले लीड वन और लीड एवीएफ में क्या सिचुएशन है, वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो बात ही अलग हो जाती है, वो पक्के से एक्सेस डिविएशन का केस है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब यहाँ पे लीड वन देखिए पॉजिटिव है, लीड एवीएफ पॉजिटिव है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे कि ठीक है ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लीड वन या एवीएफ में पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा। तो अब ये रही कुछ सिचुएशंस, अब यहाँ पे वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे के सारे वेक्टर्स, जो 1 और 3 हैं वो तो प्रॉपरली उस पे लीड वन और लीड थ्री पे वो कर रहे हैं। तो लीड वन पे पॉजिटिव आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है उसी इमेज पे, लीड वन पे दिखेंगे यहाँ पे, ये रहा लीड वन पे। लीड वन पे ये पॉजिटिव है, क्योंकि लीड वन पे पॉजिटिव क्यों है वन, अब एक एक करके
करेंगे। वेक्टर वन के लिए लीड वन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि उसकी तरफ जा रहा है। एवीएफ पे बाईफेजिक है, बाईफेजिक क्यों है, क्योंकि उसने ऐसे देखो ना, वो एवीएफ सीधा परपेंडिकुलर हो गया ना 90 डिग्री, सीधे 90 डिग्री दिख गया, तो 90 डिग्री इज बाईफेजिक, आता हुआ भी देखा और जाता हुआ भी देखा, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब लीड टू के लिए दोनों के पॉजिटिव है, लीड वन के लिए भी पॉजिटिव है, लीड एवीएफ के लिए भी पॉजिटिव है। हाँ एम्पलीट्यूड अलग है, क्योंकि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड क्या है कि कितनी प्रॉक्सिमिटी से देख रहा हूँ। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली प्रॉक्सिमिटी, कि मैं अगर वन पे बैठा हूँ तो वन ज्यादा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वो बहुत पास है उसके। और थ्री में हम देखेंगे तो थ्री में अब एवीएफ ज्यादा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि एवीएफ यहाँ पे और सिग्नल भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब वेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है, तो एवीएफ पॉजिटिव हो गया। और लीड वन पे बेसिक क्यों हो गई, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो इसलिए बाईफेजिक हो गई वहाँ पे लीड थ्री। अब फिर फोर्थ में देखेंगे, अब फोर्थ जो वेक्टर है, लीड वन और एवीएफ से ही चालू करने का, नहीं तो लीड वन और एवीएफ ही देख रहे हैं। अब वन के लिए क्या हो गया, वन के लिए ये रहा फोर्थ जो वेक्टर है, वन कैसे देख रहा है, उसको जाता हुआ देख रहा है तो नेगेटिव आ गया। अब एवीएफ कैसे देख रहा है, एवीएफ इसको आता हुआ देख रहा है, अपनी साइड में देख रहा है ना यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब फिफ्थ में क्या है, ये फिफ्थ वेक्टर है, अब वन कैसे देख रहा है, उसको जाता हुआ देख रहा है तो नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव। और फिर एवीएफ कैसे, एवीएफ भी जाता हुआ देख रहा है तो वो भी कैसे नेगेटिव। अब सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ को वन आता हुआ देख रहा है, मतलब कि वन के क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है ना, ये वाला क्वाड्रेंट है ना इसका, तो वन पॉजिटिव देख रहा है, एवीएफ कैसे देख रहा है, जाता हुआ देख रहा है, तो हो गया नेगेटिव हो गया। तो फिर ओनली एक्सिस टू इज नॉर्मल इन दिस केस, एंड फर्स्ट एंड एवीएफ आर पॉजिटिव, ठीक है। और फिर एक्सिस वन एंड थ्री और ऑल्सो नॉर्मल, अगर बाकी कार्डियोलॉजिस्ट की माने, मतलब कि तो फिर उनके लिए -30 डिग्री टू 90 डिग्री, -30 डिग्री वुड बी समवेयर हियर। तो उनके लिए क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेक्टर रहता है ना, वो नॉर्मल रहता है उनके, जैसे हमारे लिए हमने इस क्वाड्रेंट को स्पेसिफाई कर दिया है ना अपना ये। पर लेकिन इन रियल प्रैक्टिस या रियल सिनेरियो हम देखेंगे तो इतना पोर्शन जो है ना, दिस पोर्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड पॉजिटिव, नॉट अ वेरी बिग इशू। सो ठीक है, तो सिक्स भी उनके लिए हो सकता है पॉजिटिव होए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, बाईफेजिक मेथड। अब बाईफेजिक का जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो आता है कि बाईफिजिक्स में क्या मतलब, बाईफिजिक का मतलब क्या होगा, इतना तो पता ही है कि बाईफिजिक का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर, हाँ वो मतलब कि जो एक्सिस था वो परपेंडिकुलर रहा होगा, तभी तो वो बाईफेजिक आया। कि यहाँ पे बाईफेजिक क्यों आया था, सबसे सीधी बात है, यहाँ पे बाईफेजिक क्यों आया थर्ड में, फर्स्ट के केस में एवीएफ बाईफेजिक क्यों था, क्योंकि ये रहा हमारा लीड एवीएफ, और ये रहा हमारा वेक्टर वन, ये रहा वेक्टर वन और ये रही लीड एवीएफ, एवीएफ और इसको लीड वन, और ये एवीएफ, ये रहा एवीएफ और ये रही लीड वन, कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल जब भी होगा इट विल बी बाईफेजिक, बाईफेजिक वेव आ गई, ऊपर भी है नीचे भी है, दैट्स इट, यही होती है बाईफेजिक। अब कभी भी देखना है एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए तो यही देखना है, दिस इज परपेंडिकुलर ज्योमेट्री, वो कर देंगे बाईफेजिक, पिन पॉइंट करना होगा एंगल, वो है यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लो कि कोई -150 डिग्री पे है, तो फिर उसके बाद परपेंडिकुलर वाला करना है, इसमें से मतलब कि 90 डिग्री माइनस कर दो, -150 मतलब कि प्लस कर दो, तो इसमें 60 डिग्री आएगा। और या कितना 60 का अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कितना होगा, 120 डिग्री पे रहा होगा, तो दोनों में से एक एंगल हो सकता है, उसमें वन और ए बी को देखें, वो आगे एग्जाम्पल है उससे वो शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। अब इसमें क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफ वन एवीएफ एंड ये, ठीक है, हाँ ये रहा, ये एग्जांपल है बढ़िया। अब इसमें देखेंगे कि अब इसमें वेक्टर वन है, नहीं अच्छा ये है यहाँ पे लीड थ्री का देखना है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखना है लीड वन और लीड एवीएफ, ओरिएंटेशन देखनी है एक्सिस की। तो लीड वन और एवीएफ देखेंगे, लीड वन पॉजिटिव है, लीड एवीएफ पॉजिटिव है, तो चांसेस है कि ये नॉर्मल हो सकता है एक्सिस इसमें। पर लेकिन अब ये देखते हैं लीड थ्री बाईफेजिक है, अब लीड थ्री की पोजीशन क्या रहती है, 120 डिग्री, ये कहाँ से पढ़ा था, ये पढ़ा था यहाँ से, इसलिए बोला था शुरू में कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीड थ्री की पोजीशन है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री से 90 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री वहाँ पे बाईफेजिक आ गया है ना, तो क्या होगा, 120 डिग्री से 90 डिग्री का एंगल होगा, इधर इट वुड लाई ओवर हियर, कि कितना हो गया 120 से माइनस करा 90, तो हो गया या तो 30 डिग्री होगा, या तो होगा वो -150 डिग्री। दो सिनेरियो बनेंगे कि जो एक्सिस होगा वो किस साइड, वो क्यूआरएस एक्सिस जो है वो किस साइड लाई करेगा, या तो आइधर -30 डिग्री मतलब +30 डिग्री पे, या तो -150 डिग्री पे। अब ये डिटरमाइन कौन करेगा कि ये इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, वो डिटरमाइन करेंगे हमारे लीड वन और एवीएफ। जो हमारा नेट इंस्टेंटेनियस वेक्टर बन रहा होगा ना, वही तो डिटरमाइन करना है एक्सिस, कि नेट इंस्टेंटेनियस वेक्टर जो बन रहा होगा वो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा, वो हमारा वन और एवीएफ बताएंगे, वो कैसे बताएंगे वो आगे देखते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाती है।
ये रहा। सबसे पहले देख लिया कि लीड वन और एवीएफ पॉजिटिव है, यानी कि चांसेस है कि ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है केस। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी वो देखना है तो लीड वन और लीड एवीएफ देखनी है, पॉजिटिव है कि नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल के जा रहा है कि मतलब कि हमारे नॉर्मल एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखनी है, बाईफेजिक को पकड़ना है। बाईफेजिक कहाँ है, यहाँ पे पहले मिल गई 3 पे। 3 की ओरिएंटेशन कितनी है वो याद रखनी है दिमाग में, 120 होती है। अब 120 है, 120 से 90 माइनस करा, यानी पर अरे बाईफेजिक है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वेक्टर बना होगा, अब इसने इसको परसीव करा है, नहीं तो इसकी पोजीशन है, लीड थ्री पोजीशन है 120 डिग्री पे, तो उसने परसीव करा है आता हुआ और जाता हुआ दोनों देखा है उसने। तो आता हुआ जाता हुआ देखा है तभी तो बाईफेजिक निकाला है उसने, यानी कि जो वेक्टर रहा होगा मेरा, वो या तो इस पे रहा होगा ना पूरा 90 डिग्री, यहाँ या तो इस साइड रहा होगा या तो इस साइड रहा होगा, दोनों में से एक ही साइड रह सकता है, पर लेकिन हुआ होगा वो 90 डिग्री ही। हुआ होगा वो 90 डिग्री ही। तो फिर जब वो 90 डिग्री रहा होगा तो दो सिनेरियो बन जाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो फिर अब दोनों में से कौन सा रहा होगा, या तो +30 बन सकता है तो -150 बन सकता है, वन या टू। अब वन या टू में हम देखेंगे कि अब जो है, जो इंस्टेंटेनियस वेक्टर बना होगा उसको पॉजिटिव, तो अब पॉजिटिव देखना है कि या तो इस पॉजिटिव साइड पे है, तो अगर यहाँ पे हो गया तो नॉर्मल है, अगर यहाँ पे हो जाएगा तो वो एक्सट्रीम राइट डिविएशन होगी, क्योंकि राइट की तरफ चला गया पूरा का पूरा। अब ऊपर जाना क्यों खराब है, क्योंकि उसका मतलब है कि ऊपर की तरफ हार्ट की सारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी की पूरी चली गई, विच इज मतलब कि नॉर्मल से अलग है वो, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे होनी चाहिए, मसल मास यहाँ पे ज्यादा है नॉर्मली। तो अब लीड वन में पॉजिटिव है, लीड एवीएफ में पॉजिटिव है। अब एम्पलीट्यूड देखो इसका, लीड वन का और लीड एवीएफ का। लीड वन पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो यानी कि एक चांस ये हो गया कि पहली बात तो +30 डिग्री की अब इसके पास है ना ये वेक्टर, अगर जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं बाईफिजिकल, नहीं तो हम बता दिया कि दोनों में से एक सिचुएशन पे बन सकता है। अब लीड वन और लीड एवीएफ पे वापस आ जाएंगे। लीड वन और लीड एवीएफ दोनों पॉजिटिव है, यानी कि वो तभी होंगी ना जब ये होगा। अगर टू वाले के लिए देखेंगे तो लीड वन नेगेटिव होगी, क्योंकि उसको वो जाता हुआ दिखेगा सिग्नल, तो वो नेगेटिव निकालता, और एवीएफ भी उसको जाता हुआ दिखता तो वो भी नेगेटिव निकालता, पर यहाँ पे पॉजिटिव है तो वन इज द आंसर, मतलब कि +30 डिग्री इज द आंसर। यहाँ पे है क्यू आर एस एक्सिस एंड दिस इज नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाइफेजिक वेव, सेकंड डिटरमाइन द एक्सेस टू पॉसिबिलिटीज, हो गई ये हो गई। बाइफेजिक मिल गई तो समझ लो उसके ही 90 डिग्री पे है जो भी है। ठीक है, फिर चेक बैक करेंगे फर्स्ट एन एवीएफ पे। भाई ऊपर भी कर सकते हो, थर्ड वाले को सबसे पहले भी कर सकते हो, अगर सीधे ही टिक मारना है कहीं पे आंसर पे तो ये है, दोनों पॉजिटिव है भाई, नॉर्मल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला हमेशा याद रखना है, ये वाला देखो, जहाँ दोनों वन और एवीएफ पॉजिटिव है एक ही सिचुएशन बनी है, वो नॉर्मल वाली ये रही सेकंड। अब बाकी सब में या तो बाईफेजिक होगा तो भी गड़बड़ है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को उतनी गड़बड़ नहीं बोलेंगे, पर लेकिन ठीक है, स्टिल दे आर सस्पिशियस। बट फोर्थ देखो, AVF1 दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, गलत। पॉजिटिव ही होने चाहिए दोनों, सिक्स्थ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, गलत। तो ठीक है, वहां पे नॉर्मल ये है ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फिर भी नॉर्मल कर सकते हैं, पर फोर्थ फिफ्थ सिक्स नॉट नॉर्मल। तो अब यहाँ पे सीधे ये है एक्सेस डिविएशन। ठीक है, वाई इट इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर। क्यों, क्योंकि अब ये देखो, अब टग ऑफ वॉर ही है ना कि कोई राइट वाला अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींच रहा है, एंड दिस इज लेफ्ट एक्सिस डिवीएशन। लेफ्ट एक्सिस डिवीएशन कैसे दिखेगी यहाँ पे, अब लीड वन में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लीड एवीएफ में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या पढ़ा था अभी 2 सेकंड पहले कि नॉर्मल कब है, जब दोनों के दोनों फर्स्ट है एवीएफ पॉजिटिव है, पर लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, तो इट इज लीड वन में पॉजिटिव दिखा रहा है, लीड एवीएफ में वो दिखा रहा है। तो जो वेक्टर है हमारा, शिफ्ट किस तरफ हो गया, लेफ्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया ना, लेफ्टवर्ड ज्यादा हो गया, फर्स्ट की तरफ ज्यादा एम्पलीट्यूड आ गया, एवीएफ में कम आ गया। तो मासिव थिकनेस लेफ्ट वेंट्रिकल फिजिकली पुल्स द मीन वेक्टर अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। एंड क्लिनिकल केस कॉजेस कौन कौन सी होती है, सीवियर सिस्टमिक हाइपरटेंशन एंड एओर्टिक स्टेनोसिस एंड राइट डिविएशन। अब राइट डिविएशन देखेंगे, अब राइट साइड में हम देखेंगे, राइट साइड डिविएशन में क्या हो गया, जो वेक्टर जो है इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, दिस इज द राइट साइड। तो अब लीड वन में कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो जाता हुआ दिख रहा है, एवीएफ में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी स्टैंड कर रही है और हमेशा स्टैंड करेगी कि जब फर्स्ट और एवीएफ दोनों पॉजिटिव नहीं है तो इट इज अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया राइट का, एक्सट्रीम राइट एक्सिस डिविएशन, जब ऊपर वाले क्वाड्रेंट -90 और +180 वाला वो हो गया एक्सट्रीम राइट डिविएशन। अब इसमें लीड वन क्या है, नेगेटिव, लीड एवीएफ भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ चला गया अपवर्ड एंड राइटवर्ड।
सो क्लिनिक कॉजेज कौन कौन सी होती है राइट एक्सिस डेविएशन की? सीओपीडी एंड कंजेनिटल। ठीक है। सो दिस इज द समरी। अब यहाँ पे ये देख लो कि नॉर्मल एक्सिस कितना है यहाँ पे। नॉर्मल एक्सिस में लीड वन और लीड एवीएफ पॉजिटिव रहेंगे, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन 0 to -90 डिग्री, और राइट एक्सिस -92 + 180 डिग्री, और एक्सट्रीम राइट डेविएशन -92 + 80। और ये रहा पूरा चार्ट इसका। और ये रही वहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेंगे और क्या नहीं रहेंगे। दिस इज टू बी मग्ड अप, पर देयर इज नो नीड टू मग अप इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये तो मतलब बेसिकली स्टैंड करेगा हर सिचुएशन में। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो टू डिटरमाइन दिस, और वी कैन प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एक्सिस डेविएशन और इज इट नॉर्मल। तो सबसे फर्स्ट क्या रहेगा? लीड वन एंड लीड एवीएफ देखो। लीड वन क्या है? पॉजिटिव है। लीड एवीएफ क्या है? एवीएफ नेगेटिव हो गई। बाईफेजिक हो रही थी पर लेकिन उसकी तरफ हो गई। अब क्या देखेंगे? अब बाईफेजिक देखना है इसमें। ऑलमोस्ट बाईफेजिक कौन सी दिख रही है? एवीआर दिख रही है बाहरी, मेरी एवीआर। दिस एवीआर इज बाईफेजिक। एवीआर की वो क्या थी ओरिएंटेशन? वो जो चार्ट बनाया था हमारा, उसमें एवीआर किस तरफ था? एवीआर वाज समवेयर हियर, -150 डिग्री एवीआर की पोजीशन था, है ना? जो एकदम बिगिनिंग में चार्ट देखा था, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे देखा था ना एवीआर की पोजीशन क्या, -150 डिग्री आ गई। ठीक है, बाकी सबकी पोजीशन याद ही रखनी है, इसलिए था कि वो पोजीशन याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। अब एवीआर की अब ये देखना है। ठीक है, फर्स्टली क्या देखा? स्टेप वन, ये देखा हमने कि लीड वन और लीड एवी एल, लीड एवीएफ इंफीरियर दिख रही है। वन एंड एवीएफ का हल क्या है? तो ए वन क्या निकली यहाँ पे? पॉजिटिव निकली है, वन पॉजिटिव है ना। एंड एवीएफ इज ऑलमोस्ट बाइफेजिक या नेगेटिव की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव है यहाँ पे। तो एवीआर क्लियरली बाइफेजिक है। सबसे ज्यादा बाइफेजिक, अच्छे से बाइफेजिक कौन सी? एवीआर। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एवीआर बाइफेजिक है, तो यानी कि जो वेक्टर बना है हमारा, जो इंस्टेंटेनियस वेक्टर बना है जहाँ पे मतलब सारा मसलमा शिफ्ट हुआ है, वो 90 डिग्री रहा होगा। यानी कि जो वेक्टर बना है वो इन दोनों में से एक पोजीशन पे बना है, ये रहा। 90 डिग्री तो यही है ना यहाँ पे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 90 डिग्री, तो यह थी -60 डिग्री बना है, या तो 120 डिग्री बना है। अब देखना है कि या तो पॉसिबिलिटी बन गई ना, ये इसका 90 डिग्री तो यही बनेगा यहाँ पे। तो स्टेप टू, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। व्हाई वी आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर? ड्रॉ द परपेंडिकुलर। व्हाई वी आर ड्राइंग द परपेंडिकुलर? बिकॉज परपेंडिकुलर ही तो है जो बाईफेजिक देखेगा। मतलब कि बाईफेजिक जब हुआ है तो उसने आधा ज़्यादा देखा है, तभी तो बाईफेजिक बना है। तो ठीक है, अब दोनों में से कौन सा होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए स्टेप थ्री क्या देखा था हमने? स्टेप थ्री था चेक विद फर्स्ट एंड एवीएफ अगेन, बैक टू स्टेप वन। कि अब देखना है कि अब -60 डिग्री में, मतलब -60 डिग्री के पास में कौन सा है? यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे एवीएफ है। अब कौन सा किस किसके ज़्यादा क्लोज है? ये -60 डिग्री जो वेक्टर है, एक इसको वन ले लो, पिन बदल देते हैं। अगर ये वन है, ये वन है और ये टू है, तो कौन सा हमारा नेट रिजल्ट है? कि मतलब कहाँ है डिविएशन, अगर है भी तो फिर ये देखा जाएगा। तो फिर अब वन और टू में देखेंगे, फिर वन और एवीएफ में देखेंगे। अगर ये टू होता, अगर टू होता तो एवीएफ क्या आता? पॉजिटिव आता, पर यहाँ पे तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है या बाइफेजिक हो रहा है, तो टू तो पक्के से नहीं है। और फिर ऊपर से दूसरा सिचुएशन की टू क्यों नहीं है, दूसरा उसका मतलब सपोर्ट, वन पॉजिटिव आ रखा है ना यहाँ पे। तो वन तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वन के लिए अगर ये नेट हमारा वेक्टर ये होता, मीन वेक्टर ये होता, ये वाला 120 डिग्री वाला, तो वन तो नेगेटिव परसीव करता है ना। अब वन, अब फिर अब ऑप्शन वन पे देखते हैं कि ये वाला इसको रखते हैं। तो अब वन में देखेंगे, अगर ये वन हमारा इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर है, तो फिर फर्स्ट इसको पॉजिटिव लेगा। फर्स्ट पॉजिटिव ले रहा है, हाँ ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है। एवीएफ इसको नेगेटिव या बाइफिजिक लेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसको जाता हुआ ही देख रहा है। तो ये नेगेटिव ले रहा है, हाँ ये नेगेटिव ले रहा है एवीएफ। तो फिर आंसर क्या है? वन। तो ओरिएंटेशन क्या है हमारी इसकी?
orientation is -60 डिग्री एंड क्या है ये, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है कि नहीं है, जिसमें हमारा फर्स्ट लीड इज पॉजिटिव, सेकेंड लीड ईवीएफ लीड इज नेगेटिव। तो ये सिचुएशन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की है, और ये पोर्टेंट किसका है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का है। ये रहा उसका, मतलब जो अभी हम पढ़ के जा रहे हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होगा, जो वेक्टर होगा वो कहाँ पे बनेगा, 0 to 190 -90 डिग्री, यहाँ पे बना है हमारा वेक्टर, यहाँ पे ये रहा, इस तरह बना है। और फिर उसमें क्या होगी, 1 पॉजिटिव होगी और एवीएफ नेगेटिव होगी, और यही है 1 पॉजिटिव है, एवीएफ नेगेटिव है, ठीक है। और फिर दैट्स इट हो गया। आप इसमें प्रिसाइज जितना करना कर सकते हैं, केक वॉक। ओके, थैंक यू। Anatomy of P wave and depolarization of atria will be discussed in another lecture. Thank you.